Hello, Assalamu alaikum and welcome. You are watching A Sports and the ARY Zap app, and it is Pavilion o'clock on the clock. And yes, it does take one day to determine a true champion. That's what it's all about. Here we are with our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. I am Fakhar-e-Alam, and with me in the pavilion, I've got four outstanding cricketing legends who have served game of cricket and Pakistan really well. Welcoming in the pavilion, first up is a young, dynamic, the super fit, one of the finest fielders, a great middle order batsman, a great off spinner, and an all-round great guy, Shoaib Malik. Shoaib, assalamu alaikum and welcome. Good to have you. बिल्कुल ठीक है. I love the glasses. You look good. Thank you. प्रोफेसर लग रहे हैं आप आज. जी मैं आपको आज सिखाऊंगा बहुत कुछ. ओह, आप तो मुझे बहुत कुछ सिखा रहे हैं. उस पर बाद में बात करेंगे. खामोश please. Sorry. And with that, we've got Mr. Dependable, the man who led Pakistan's test side to great glory, one of the most successful test captains that we had, and one of the great batsmen. Well, when wickets were falling all around him, he would always hold one end up and make sure Pakistan delivered on critical occasions. I welcome Mr. Misbah. Misbah, assalamu alaikum and welcome. Wa alaikum assalam. Good to have you here. Not to forget that Misbah is also the chairman of the technical committee of the Pakistan Cricket Board. खाली चेयरमैन कर देना आगे टेक्निकल. अच्छा. Ooh, ambition is speaking here. Ambition. Good to have you here, Misbah. Thank you to be here. आपका दिल करे तो आप पता नहीं. मेरा दिल तो बहुत कुछ करता है. अगर हर चीज का दिल पे ही हो तो फिर तो कमाल ही हो जाए. Also joining us, as I told you yesterday, and I'm going to just those of you who are just joining us, आप सबको भी बताता चलूं कि आगा बाटा की जोड़ी जो है वो unfortunately टूट गई है. और आगा बाटा की जोड़ी यानी कि the two W's that we had here in the pavilion, because one W, which is Waqar Yunus, has gone to India for the commentating assignment. We wish him all the best. But joining us is a man who stayed behind the stumps and watched that entire action of the two W's really up close. और बहुत सी उंगलियों की कुर्बानियां दी हैं इन्होंने पाकिस्तान के लिए. बहुत सारा सर्विसेज हैं इनकी. Another true legend. Please welcome Moin Khan. Moin, assalamu alaikum and welcome. Wa alaikum assalam. Please show that again. I want to see it. Wa alaikum assalam. Good to have you. Thank you. इसमें हम बात करेंगे जरूर. And the cricket royalty with us, always in the studio, always bright, always shining, and always with those outstandingly funny sentences that really are potent and loaded always. The man himself, the Sultan of Swing and the undisputed all-rounder king of cricket. Please welcome Mr. Wasim Akram. Wasim, assalamu alaikum and good morning and welcome. Assalamu alaikum everyone. Good afternoon. क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक हैं? जब मोइन की उंगलियों की बारी है तो मैं जब इसकी उंगलियां देखता हूँ ना तो मुझे हॉरर फिल्म याद आ जाती है. मोइन खान है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हर कीपर की मोस्टली ऐसे होती है. ये आप ही की कर्टेसी है. सबसे ज्यादा उंगलियां किसने तोड़ी हैं आपकी वैसे? Between Waqar and Wasim. दोनों की. वकार वसीम है का थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा था तो इजी होता था कीप करना. वकार का थोड़ा सा नीचे रहता था बॉल, उसको मुश्किल होता है. स्पेशली पाकिस्तान में मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है तो हमारी लो बाउंसी पिचेस हैं. एक तो आगे खड़ा होना पड़ता है पेस इन जैसे लोगों की, और विद रिवर्स स्विंग पकड़ना. तो ये बड़ी कुर्बानियाँ. मोइन मिडिल से जब बॉलर थोड़ा थका होता है, स्पेल में जान भी लगा रहा होता है, फिर वो एक मिडिल लेग से लेग की तरफ जाती है जो लो ही रहती है, उस पे जाती है ज़्यादा उंगलियाँ. बिल्कुल ऐसी होता है. और ये ज़्यादातर उंगलियाँ वैसी टूटी है. लेकिन रिंग वाली बिल्कुल सीधी है. कौन सी? जिसमें रिंग है. तो वो पापी ने थोड़े ना ठीक ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਥੋੜੇ ਪੈਣੇ. Okay. Interesting start to the pavilion. Well, that's what it's all about. And it is the ICC Men's World Cup 2023. 50 overs aside. And this is going to be absolutely fantastic. We've got continued coverage. We've got a lot of things to share with all of you. और आप लोगों के साथ हम मुसलसल करते हैं. याद रहे कि आप लोगों के सवालात जो हैं वो #AskThePavilion पे आप हमें भेज सकते हैं on all the social platforms. और बिल्कुल मैंने आप सबके कल मैसेज पढ़े. It is not Twitter anymore. It is X. गलतियां ठीक करते रहना बस. हमारी गलतियां ठीक करते रहिएगा आप लोग. दिस इज ये बेशक 100 वो नहीं सही करते. नहीं. ठीक है. बंदा टाइप करता है कई दफा कॉमा डॉट स्पेलिंग मिक्स हो जाते हैं. एने वेले बैठे ने ये आपने स्पेलिंग गलत लिखे है. दैट तो उस्ताद ठहरदा नहीं.
right, let's get to the business of the World Cup. We've got a cracker of a game today. First up, the opening game. But उससे पहले कि हम opening game की बात करें, एक चीज़ मैं पूछना चाहता था आप चारों से, maybe you could share this with us. How come, India is known for putting up spectacular shows, yes. IPL ho, Bollywood ho. How come no opening ceremony for the World Cup? I think it's that decision I think I might be wrong, is up to ICC. Because they are the one who hosting a tournament. India Right. is just hosting it. I don't know how it works, but usually India to unko to excuse चाहिए to do an opening ceremony. Yeah, they are that's the what best I'm thinking. in the world. Anybody? I mean, as a player, Any idea? opening ceremony for me it doesn't matter to me actually. No, but for the viewers, Viewers maybe. मुझे लगता है Yeah. टीम्स ने मना कर दिया, कहते हैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए. But teams को आने की जरूरत नहीं opening ceremony में. Team को आने की जरूरत नहीं है, but you could have an opening ceremony. I mean, I was really expecting a big opening ceremony. I was Yeah, thinking, especially जिस venue पे आज का पहला मैच हो रहा है World Cup, like you said, about to start today. Exciting times ahead. Next, how many games? 48 games. 48 games. 10 हम में से venues, कोई 10 तब तक teams. आधा एक आधा गायब हो गया या खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो माफी चाहते हैं पहले ही. It's a long time and two exciting teams. Two of the finalists of last year playing the first game, and that too at that amazing venue Ahmedabad. मैंने देखा नहीं in नरेंद्र मोदी साहब का stadium. जी. But उनके नाम से है, but 120,000 people. Wow. That's incredible. I mean, I remember हम खेले हुए हैं 120 में. Eden Gardens में हम खेले हुए हैं. 125 मेलबर्न में वर्ल्ड कप फाइनल में 89,000, but 120,000 and that's colossal. It is huge. And आपने बड़ी अच्छी बात की वसीम, these are the two finalists from the 2019 World Cup, and there's a lot of history in the World Cup because both teams are evenly poised. दोनों टीमों ने World Cup के अंदर 5 दफा मैचेस जीते हुए एक दूसरे के खिलाफ. So they played 10 together, 5 by New Zealand, 5 by England, and the 2019 World Cup, well, we all remember that great game of cricket, जो आखिर में सुपर ओवर पे फैसला भी नहीं हुआ, बाउंड्री काउंट्स के ऊपर जो है उसका फैसला हुआ. वो आपने कल बताया है कि वो लॉ खत्म हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया. वो अब सुपर ओवर ही होता रहेगा. अगर सुपर ओवर भी टाई होता है तो फिर एक और दोबारा सुपर ओवर होगा. आई थिंक दैट्स द फेयर वे. वो बाउंड्रीज वाला वो लॉ था, बिल्कुल ऐसे था. ऑल्सो इंटरेस्टिंग चीज जो है कि सेमीफाइनल और फाइनल दोनों के लिए रिजर्व डेज रखे गए ताकि कोई उसमें एम्बिग्विटी ना रहे. बारिशों के हवाले से एक सवाल था, कल मैं देख रहा था, somebody asked on X के what happens in case it rains now. Interestingly, जो मौसम है, अक्टूबर जब शुरू होता है तो इंडिया में बारिशें कम होना शुरू हो जाती हैं, एक्सेप्ट कि नॉर्थ में कम होती हैं बारिशें. सो अब धर्मशाला ले लें फॉर एग्जांपल, तो उधर अक्टूबर में एवरेज 2 दिन बारिश होती है. हाउएवर इफ यू गो डाउन साउथ, यू हैव प्लेसेस इन बेंगलुरु where it can rain 11 days in October. So you have that ambiguity there, but I'm sure that there's some way of going about it. Point share होगा, फिर वो net run rate भी होगा. Mostly you'll get point each because qualify करना ना आप लोगों ने. अगर बहुत जरूरत हुई तो श्रीलंका ले जाएं 1-2 मैच. हाइब्रिड, फॉरेन हाइब्रिड पे चले जाएं, ट्रैवल ओवर देयर, और वो उधर तो भाई कश्तियों में खेलना पड़ेगा मैच. लेकिन आई थिंक श्रीलंका में भी अब बारिशें खत्म हो गई हैं. आई थिंक दे आर आल्सो नाउ लुकिंग एट अ वेदर चेंज. लेट्स टॉक अबाउट द गेम दैट वी हैव टुडे, बट बिफोर वी डू, लेट्स गो डाउन मेमोरी लेन. लेट्स लुक एट द faces that were there in 2019 and what they thought about that game. Just simply inspirational and goosebumps all around. Absolutely. What fantastic. And apart from the जिस तरीके से ये फाइनल हुआ है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, tie, super over tie, and it was incredible. And the commentators, they were fantastic. Smithy and Bish, the best in the business, and they were taking you as a viewer right on the field itself, and that gives extra edge to that particular final. Yeah, it created a moment. Before we go into a break, I'd like to ask, because New Zealand के लिए बहुत बड़ा heartbreak था. They've been there and they've been there so close yet not getting there, and that takes me down memory lane. Shoaib, you were the captain. It was South Africa, the first T20 World Cup. Misbah, you scooped the shot against India, and I remember you were heartbroken. And the chairman then walked you into the pavilion when you were walking in. You were heartbroken. कैसा महसूस होता है when you are this close and you just miss it? बहुत tough होता है. Always it's very tough. क्योंकि जो सबसे बड़ी disappointment में होती है वो ये होती है कि आप from nowhere अगर आप एक मैच में इस situation में आ जाते हैं कि you are just a hit away. एक तो समझने की बात ये है कि किसी भी क्रिकेटर के लिए कि जब ऐसी situation हो जाती है तो then somehow कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी आ जाता है. अब आप देखें जिस तरह का ओवर थ्रो हुआ है, चौका हुआ है,
इट वाज जस्ट, मैं कहूँगा न्यूजीलैंड के लिए भी एक बैड लक कहूँगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल में, अगर आप पीछे थोड़ा सा रिकॉल करें उसको, कि वन टीम प्लेइंग मॉडर्न डे क्रिकेट, जिन्होंने पूरी क्रिकेट चेंज कर दी वन डे T20 की, द अदर टीम वाज प्लेइंग कन्वेंशनल क्रिकेट, बट दे वर सो गुड इन दैट कि उन्होंने वही तो 230-40 पे द वे दे प्लेड और बैक देमसेल्व्स, एट द एंड दोनों क्लोज थे, और जो डिसाइडर उनके दरमियान जो डिसीजन हुआ है, it's just that boundary count. So another question to you, Shebi, before you can answer both together, both of you. इस सिचुएशन पे जैसे 99 वर्ल्ड कप में हमने तो वन साइडेड ही हार गए थे ना ऑस्ट्रेलिया से, दैट वाज मोर डिसअपॉइंटिंग, बट हाउ as an ex-sportsman, as a sportsman at the time, how do you come back out of it? यही था. Psychologically, how do you come back? Hold your answers right there, because I have to go into a break. I do apologize for that. We are running against the clock right now, but we do want to listen to that answer. So, दोस्तों, इस सवाल का जवाब सुनेंगे आप इस वक्फे के बाद. Keep watching the Pavilion on A Sports and the ARY Zap app. We'll be back after the break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. With me in the studios, I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and the great Wasim Akram. Break पे जाने से पहले वसीम अकरम ने एक सवाल पूछा था from both Misbah and Shoaib, जो कि वो हम बात कर रहे थे, जो T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल हम हारे थे. How do you come back from that? Because ये न्यूजीलैंड के लिए भी अभी यही है कि 2019 में they were so close and they missed it, and now they're starting their campaign right from where they left off against England. देखिए, बड़ा मुश्किल होता है ऑब्वियसली, इतना बड़ा एक स्टेज है वहाँ पे, अगर आप बिल्कुल ऐसे क्लोज आके एकदम ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो सारी ज़िंदगी के लिए आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं रहता है. बट द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ दैट इज़ ऑब्वियसली यू हैव टू बेसिकली मूव ऑन इन लाइफ. अदरवाइज़ अगर आप पास में रहेंगे, एक सिंपल सी एक जुमला होता है जिस पे हम हमेशा मेरे ख्याल में फोकस करना चाहिए ज़िंदगी में भी, कि ओनली वरी अबाउट द कंट्रोलेबल्स. जो अनकंट्रोलेबल्स हैं उनके बारे में, जैसे पास्ट है दैट इज़ अनकंट्रोलेबल नाउ, जो होना था वो हो गया. अगर आप उस पर स्टक हो जाएंगे देन यू कैन नॉट मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड. जनरल मैसेज ऑफ लाइफ एज वेल, राइट. और ये सिर्फ कहना बड़ा आसान है, उसको करना बहुत मुश्किल है. ये एक प्रैक्टिस है, मेंटली आप इसको प्रैक्टिस करते हैं. स्पोर्ट्समैन तो हर रोज़ जब वो ऑन द फील्ड होता है 0-100, 0-100, जीत हार, ये उस चलते, तो आपको इसकी प्रैक्टिस लाइफ में होती है. आपने इसको बाकायदा उस चीज़ को मेंटली भी आपने प्रैक्टिस करना. तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एट टाइम्स, जब भी ऐसी सिचुएशन में आप दोबारा आते हैं, जैसे अब न्यूजीलैंड दोबारा कभी ऐसी सिचुएशन में जाएगी, डबल प्रेशर, तो वो आपने उस पे ओवरकम करना है कि अच्छा ये हुआ, उसको भूल के नाउ आई हैव टू जस्ट डू इट बेटर. इट्स टफ बट इट्स डूएबल. It's been exactly 16 years since that final happened. अभी मैं केन विलियमसन के एक्सप्रेशन देख रहा था जब वो ओवरथ्रो हुआ. It wasn't Ben Stokes' fault. लेकिन वो जो एक्सप्रेशंस थे तो मुझे 16 साल पीछे ले गए. वो उस सोच में ले गए कि हम लोग वो फाइनल हारे. तो ये इट्स नॉट इजी एज मिसबा भाई सेड, लेकिन ये यू गॉट टू मूव ऑन इन लाइफ. और आई गेस आपको जो सक्सेस है वो इतना नहीं सिखाती, आपको फेलियर्स जो हैं वो ज़्यादा सिखाते हैं. और यही होना चाहिए मेंटली. देखिए, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स. तो जितना जल्दी आप उसे मूव ऑन करेंगे उतना ही अच्छा है. और ये है कि नया दिन शुरू हो जाता है, नई होप्स आती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो फिर आपको मूव ऑन करना ही पड़ता है. लेकिन समवेयर बैक ऑफ योर हेड इट स्टेज. इट डज स्टे. मलिक, ये देखें, बेन स्टोक की अगर आप थोड़ा सा पीछे लेके जाएं उसको, वो लास्ट ओवर 4 छक्के, उसके बाद जैसे बेन स्टोक ने कम बैक किया है, दैट बेसिकली टेल्स यू द स्टोरी. और ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए कि यार उसके बाद या तो आपका कैरियर ख़त्म होता है
उस बंदे ने उसके बाद क्या उसको वापस ले गया। ये मैं जरा लोगों को बताता चलें कि ये बेन स्टोक्स के उस फाइनल की बात करें जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया में T20 का आखिरी ओवर था, और ब्रेथवेट ने 4 छक्के मार दिए थे आखिरी ओवर के अंदर। सो इट्स रियली नोबडी थॉट कि यार उस टाइम वो बॉलर भी अच्छा था कि ऐसे 17 रन्स कोई छोटी सी बात नहीं होती। बेन स्टोक्स उस टाइम पे बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग वो करता था, मेन बॉलर था उनका, और उससे वापस आना आई थिंक he took therapy classes. मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। You mean therapy or therapy? You took therapy, हाँ. right? He took therapy after those 4 sixes. और उसके बाद मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और उसने ये कहा कि I was like all over the place. Right. I couldn't forget what happened to me. उसके बाद उसका वो इंसिडेंस हुआ था, remember in Bristol, him and Hales जो लड़ाई हुई थी इनकी, was after the World Cup. It was probably. I'm not sure. Okay. I don't remember. I do remember there was an incident, and उसमें काफी अखबारों में भी बात जो थी वो चली थी. There was a fight in a bar. I think they were there, something like that. And that बाहर में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं. बाहर में अक्सर लड़ाइयाँ. So therapy ले लेनी चाहिए. हाँ. थेरेपी ले लेनी चाहिए. That takes me to another question. देखो हमारे यहाँ तो टैबू है ना ये चीजें बात करना, स्पेशली क्रिकेटर प्लेयर्स की, जनरल्स की, आम बंदे की मेंटल हेल्थ पे तो पाकिस्तान में वैसे ही टैबू है ना बात करना कि जी मेरी मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं. इसमें हम बात करेंगे आगे जाकर, मगर इस वक्त आपको बताते चलें कि आज ICC मेंस वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज हो रहा है और पहला मैच है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. Here's the match that we have for you. This is where the story ended in 2019. New Zealand heartbroken and England were victorious, and that's where the story is starting today, 5th October, as we kick off the World Cup live from Ahmedabad. अब से कुछ देर बाद हम आपको टॉस पे भी लेकर जाएंगे, पिच रिपोर्ट पे भी, और फिर मैच की तरफ. इट्स इंग्लैंड बामुकाबला न्यूजीलैंड. ये है हमारा आज का पहला मैच. बेन स्टोक्स की बात कर रहे थे हम, थेरेपी की बात कर रहे थे, और हमने कहा कि मेंटल हेल्थ के बड़े इश्यूज होते हैं. वी विल टॉक अबाउट इट मोर, बट कोई थेरेपी या कोई इस तरह की काउंसलिंग आपको मिलती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब आपके साथ कोई? Not in our time, no. We had one doctor, I think. आप तो वैसे ही एक दूसरे के डॉक्टर रहे होंगे. You may remember the Australian tour. Mr. Max Babri, he was with us. 2000 की टूर की बात कर रहे हैं. Max, when Max was a captain. Right. So he was with us. तो हमें और वर्ल्ड कप में टीम के साथ 2012 में भी ड्यूरिंग इंडियन टूर फायदा होता है कोई? हाँ बिल्कुल होता है, बट एज अ प्लेयर यू गॉट टू बी लाइक ऑनेस्ट इनफ टू शेयर योर मतलब व्हाट यू गोइंग थ्रू, फीलिंग इनसाइड अंदर क्या हो, फिर ही आपकी हेल्प हो सकती है. मैं भी यही कहने लगा था कि सबसे पहली बात है कि आप एक्सेप्ट तो करें आपसे गलती हो रही है और आप उसको ओवरकम करना चाहते हैं. जब तक आप सोचेंगे नहीं कि मैंने इम्प्रूव करना है, अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है, देन you can listen to that fellow. Otherwise हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये भी अक्सर मैंने देखा है, जो बहुत बड़े बड़े हमारे प्लेयर्स गुजरे वो इस चीज़ को मानते भी नहीं, बट वो भी अच्छी चीज़ होती है बिकॉज कि वो अपने आप से लड़ते हैं अपने अंदर भी एक करेज होती है ना कि यार नहीं मैंने खुद कम बैक करना है तो ये बहुत सी मैंने प्लेयर्स में देखा है. जावेद भाई जब भी फेलियर होता था बहुत कम बैक हार्ड करते थे, हमारे सामने बैठे हुए इंजरीज के बाद आके बड़ी परफॉर्मेंसेस दी. स्टोरी ऑन दिस बाय द वे. आई वांट टू लिसन. 99-2000 में हमें पीसी में एक डॉक्टर आए थे अमेरिका से, पाकिस्तानी नसाद, तो साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने हमसे पहले बातें की इंडिविजुअल. अब मैं लड़कों के नाम नहीं लूँगा बिकॉज हमारे यहाँ टची बड़े होते हैं. तो उसने कहा कि पीसी में उसने एक हॉल लिया, ब्यूटीफुल सोफे लगवाए, उसने कहा आज फिल्म देखेंगे हम सब. लड़कों ने कहा केड़ी, उन्होंने कहा 12 monkeys. इट्स अबाउट अ ज्यूरी. आई थिंक दैट्स द नेम मूवी, शायद मैं गलत नाम ले रहा हूँ, बट इट्स अबाउट अ ज्यूरी. जैसे जो होती है बाहर के मुल्कों में, तो उनमें जब कोर्ट में जब हियरिंग वर्डिक्ट करना होता है तो कैसे वो डिस्कशंस करते हैं. एवरीबडीज गॉट देयर ओन माइंड. अब एक मुंडे ने पूछा फाइन एक्शन है की, मैं कहा बहुत एक्शन गोलियाँ चलनी है. अब उन्होंने लगा दी, वो फिल्म थी, तो वो बातें आपस में आर्ग्यूमेंट एंड डिसीजन, किसी का कुछ है किसी का कुछ है. तो 10 मिनट बाद मैं डॉक्टर ज़रा दरवाज़ा लाइटें तो ऑन कर. उसने लाइटें इसी लगा, गर्मी थी, लाइटें ऑन ऑफ की उसने. 15 मिनट में लाइटें ऑन कराई मैंने, तो 90% खराटे मारे थे, सौ नहीं सारे.
मैं क्या काम कर गया Alright, so we will talk more about it. Ben Stokes की हम लोग बात कर रहे थे. Let's take a look at Ben Stokes' stats here on your screen. He's an impact player, no question about it. But इंग्लैंड की टीम में तकरीबन सारे ही impact player हैं. मतलब बंदा किस की बात करे. आप ये देखिए 108 मैचेस उन्होंने खेले हुए. ODIs की इनकी फिगर्स हैं. 3000 से ज़्यादा प्लस रन्स हैं. एवरेज 40 की है. स्ट्राइक रेट 96, ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट है. I mean, look at that. That's his volumes about him. He's a phenomenal player, man. Phenomenal player. He has improved. Yeah. But here's the thing, Wasim. He is giving an injury scare today. There is a hip injury scare today that he might not be playing today's game. देखो इंजरी या निगल्स का nobody can control. मिसबा ने जैसे कहा कि अनकंट्रोलेबल, जैसे कैप्टन जब मुझे को पता लगता था ये प्लेयर इंजर है, मेरा मेन प्लेयर इंजर है, आई हैव लर्नड अर्ली ऑन कि भाई अब इंजरी है, I'd rather play a player who's 100% fit than my main player who's got a niggle. There's a chance कि वो eventually injure हो जाए. ये 99 वर्ल्ड कप में हमारे साथ हो चुका था ऐसे. यूसुफ का हैमस्ट्रिंग पुल हो गया और जब ये हम गेम खेल रहे थे साउथ अफ्रीका से नॉटिंघम, मैंने कहा यूसुफ ये हैमस्ट्रिंग की इंजरी है, अभी तुझे अच्छा लगेगा, नेट में भी ठीक लगेगा, स्प्रिंटों में भी ठीक लगेगा, जब प्रेशर में रनिंग करेगा ना ये दोबारा खिंच सकता है. सो मेक श्योर कि तू ये मैच अगर रेस्ट करना है तो करके और थोड़ी ट्रीटमेंट करा ले, अगले मैच में आ जाए. यूसुफ ने फिजियो ने भी कहा नहीं ये ठीक हो जाएगा, हिल बी फाइन. यूसुफ ने भी कहा हिल बी फाइन. मैच में गया, दूसरा तेज रन लिया है, पुल्ड इट अगेन एंड देन ही कुडंट प्ले. फाइनल में खेला नहीं वो. सो ये बड़े डिफिकल्ट डिसीजन बट राइट डिसीजन होते हैं बिकॉज लंबा वर्ल्ड कप है. इस हवाले से देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमेशा हम बात करते हैं, उन्होंने टीम ही ऐसी बनाई है कि बेन स्टोक तो ऑलमोस्ट था ही नहीं वनडे में. बिल्कुल. उसके बावजूद भी उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन वन प्ले. हैरी ब्रोक जो बड़ी मुश्किल से वो उनकी टीम में नहीं आ रहा था. तो ये हर किसी को समझना ज़रूरी है. इंग्लैंड की अगर पूरी डायनेमिक्स देखें कि उन्होंने टीमें डेवलप कैसे की हैं, पूल 2015 इतना बड़ा पूल किया है कि किन प्लेयर्स, यंगर प्लेयर्स को उन्होंने लीग्स के लिए छोड़ा है कि आप खेलें जाएं. हमसे सीख के जाते हैं, हमें मार के जाते हैं. हैरी ब्रूक्स लेकिन 2015 के बाद उन्होंने माइंडसेट चेंज किया है. क्वार्टर फाइनल में इन्होंने क्वालिफाई नहीं था किया वर्ल्ड कप के. अब करंटली ये 50 ओवर के भी वर्ल्ड चैंपियंस हैं, T20 के भी वर्ल्ड चैंपियंस हैं. और 2015 के बाद जब माइंडसेट इन्होंने चेंज किया वाइट बॉल का, इंग्लैंड हैव स्कोर्ड 300 प्लस रन्स ऑन 56 ओकेजन्स. 56 दफा उन्होंने 300 प्लस रन किए. तो वसीम को कैप्टन बनाया ना 2015 वर्ल्ड कप के बाद. सो उस ड्रेसिंग रूम में उसने एक मीटिंग की थी और वहाँ टीम का जो हिस्सा थे एक प्लेयर, आई वाज सिटिंग विद हिम. सो ही टोल्ड मी, ही सेड कि उसने जो वर्ड्स बोले थे, उसने कहा कि मैं लीडर हूँ, मेरे मतलब की क्रिकेट खेली जाएगी, और जो मेरे मतलब की क्रिकेट नहीं खेलेगा ही विल बी आउट ऑफ द टीम. Wow. तो उसने कहा आप कुछ भी करो, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू लुक फॉर अ बाउंड्री एज अ बैटर. ये उसका मैसेज था. कहता था पिकमिन बॉल लीक हो जानी सी. तो इनफैक्ट उसने ये भी कहा कि एक मैच खेल रहे थे वो 2019 में अगेंस्ट अफगानिस्तान. राशिद खान हमें पता है वो विकेट टेकर है और बहुत कंसिस्टेंट है. तो सारे ना कह रहा है कि ड्रेसिंग रूम में वी ऑल वर वरीड कि हाउ वी गोना डील अगेंस्ट हिम. तो ही स्टूड अप, इयन मोर्गन, एंड ही सेड I'll take him on tomorrow, and he hit him like 12 sixes. जिसमें उसने 160 बनाए. I remember that match. तो मतलब आपकी लीडर की सोच ये होनी चाहिए. ठीक है, आप जैसी भी चीज़ें सेट करो. तो आई गेस उसके बाद से, एज यू सेड वसीम भाई, सिंस देन अभी तक वो जो है वो सेम मोमेंटम में और तीनों फॉर्मेट्स में. हाँ, हर फॉर्मेट के अंदर हुआ है. एंड आई वांट टू आस्क यू दिस वसीम, इनफैक्ट मोइन, आई विल ब्रिंग दिस टू यू. आप पाकिस्तान टीम के साथ मैनेजर भी रहे हैं, यू नो यू हैड इंपॉर्टेंट रोल्स थ्रू आउट. मिसबा भी कह रहे थे कि जो उन्होंने डायनामिक ही चेंज कर दी. आपने कहा वाइट बॉल क्रिकेट वो कर दी. एक मॉडल है जो उन्होंने सेट किया इंग्लैंड की टीम ने ना, एक पूरा का पूरा उन्होंने आपको बता दिया कि भाई इस तरह आप अपने पिछले लड़के ये करें वो करें. व्हाई कांट वी कॉपी पेस्ट दैट मॉडल इन पाकिस्तान? व्हाई डू वी फेल? फिर बात वहीं आ जाएगी. एक तो जेडीज, एक ओनरशिप की बात है. कैप्टन एंड द हेड कोच जो भी या डायरेक्टर क्रिकेट है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने किस तरह से अपनी टीम को प्रोग्रेस करना है. एक तो होता है कि आप टीम चला रहे हैं, आपने एक लेगेसी भी छोड़नी होती है. जो हमने देखा है प्रीवियसली, बड़े बड़े कैप्टन गुजरे पाकिस्तान के, उनके बाद भी टीम चलती रही है और जीतती रही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब पाकिस्तान टीम के अंदर या जो भी मैनेजमेंट काम कर रही है वो इस तरह की ओनरशिप लेती है कि यार वो ये बोल दे
कि ये स्ट्रैटेजी जिस तरह भी शोएब ने बताई, इन मॉर्गन ने कहा यार आई टेक इट, ठीक है आपने खेलना, हाँ मैं तो ये ओनरशिप लेने की बात है ना कि आप रेडी नहीं है, यहाँ पे 2 मैच में किसी से स्कोर नहीं होता है, वही बंदा जो उसको सेलेक्ट कर रहा होता है वो ड्रॉप कर देता है फिर उसको, यू नो कैप्टन भी लाइक एट टाइम्स होता है कि उसको पुश तो कर रहा होता है खिलाने के लिए कि अच्छा परफॉर्म करे, बट नहीं होता परफॉर्म, 2 मैचेस के बाद आप ड्रॉप कर दें। तो अभी मिसबा ने भी ये बात की थी, एक जो पूल इंग्लैंड ने बनाया 2015 के बाद, जिस तरह उन्हीं लड़कों को लेके चल रहे हैं, वो उनको खिला रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी आपकी सिलेक्शन में भी होनी चाहिए कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांस दें। पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो, पूरी दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बने बनाए प्लेयर मिलते हैं। व्हेन यू कम इनटू द नेशनल साइड, वहाँ से एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है, एक प्रेशर डिफरेंट होता है, यू नो वहाँ पे सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट खुद भी करनी पड़ती है और आपको सपोर्ट भी कप्तान की चाहिए होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे हम, लेकिन इस वक्त वक्त हुआ है एक वक्फे का। देखते रहिए ए स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप एंड आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023। इट्स द स्टार्ट, फर्स्ट डे अप, बिग गेम कमिंग अप, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। वी सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। हेलो एंड वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स 10 Sports and the ARY's app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. With me in the pavilion, the 4 legends. I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and the great Wasim Akram. And we were talking about the England side, और आज पहला मैच है, and the big match that we've got starting up is where we ended in 2019. The final where we saw Kiwis heartbreak and English glory. But that's where the story will start and resume today in Ahmedabad. And it's going to be England versus New Zealand. England की अभी हम बात कर रहे थे, और अभी हमने जो सबसे पहली बात की कि इंजरी स्केयर जो है वो ऑलरेडी जो है वहाँ पर आ गया, बट ब्रुक्स की बात कर रहे थे, हैरी ब्रुक्स की, जी वो आया PSL में आया हुआ है, जरा उनकी नज़र डालते हैं उनकी स्टैट्स के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं हैरी ब्रुक्स के। नाउ he's there you have that, he's played only 6 ODIs और 123 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, एवरेज कोई खास नहीं है, स्ट्राइक रेट इज आल्सो ओके, बट early days in his career, early he's days a very special player. yes, I have seen him, the way he bats in this format, in T20 format, in Test cricket, phenomenal. बड़ा कम ऐसा टैलेंट आता है इस एज में कि आते ही सेट हो गया है इसका। टेस्ट क्रिकेट का भी ये अर्ली डेज हैं, वनडे क्रिकेट में आई सपोज, बट अब अगर आपका मेन प्लेयर इंजर्ड है, बेन स्टोक्स फॉर इंस्टेंस नहीं खेलता, तो यू हैव हैरी ब्रुक्स, सो दैट्स व्हाई इंग्लैंड साइड इज सो गुड कि बैकअप दे प्लान एवरीथिंग कि बैकअप ये गया तो ये आएगा, ये गया तो ये आएगा। अब हमारी तरह बैकअप थोड़ी है, हमारा बैकअप वहाँ CPL जा रहे हैं, क्या कैरेबियन प्लेयर आधे रस्ते से उसको वापस बुला रहे हैं, वो वापस आया है तो हम बाहर हो गए हैं, वो बगैर खेटे ही वापस चला गया। सो प्लानिंग ऐसे होती है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू प्लान स्टफ, एक्चुअली नॉट, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन। लेके भी आए हैं जेसन रॉय की जगह पे, हैरी ब्रुक्स, राइट, सो ही माइट बी ओपनिंग द बैटिंग एज वेल, चांसेस हैं कि जो है वो आ जाए, क्योंकि उनके जो मिडिल ऑर्डर में है वेल सेटल्ड और वो नहीं ज़्यादा चेंज करना चाह रहे। We have these live images coming out of Ahmedabad and there's the English camp right now, the initial discussions in the ground that are going on. जी शोएब, सो आप सही कह रहे हैं कि जॉस बटलर की जगह को वो हो सकता है, बट लेट्स टॉक अबाउट अब ये जो बात कर रहे हैं आप, एंड मिसबा लेट मी ब्रिंग दिस टू बोथ यू एंड शोएब, look at the aggression in their batting, because एक तो ये हो ही गए ना, हैरी ब्रुक्स हो गए तो वो हो गए, but then you've got as you said Joss Butler, you've got the Bairstows, you've got a lot of aggression in that batting lineup. There's like एक जाता है तो यार अभी इससे जान छूटी है तो ये अगला आ रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो मोइन भाई ने भी बात की है, कि कमांड क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आप ऊपर से एक आपने कोई चीज़ डिसाइड की, एक पॉलिसी, जैसे इंग्लैंड की मैं आपको बताऊं, मिशन 400 उन्होंने लिखा हुआ है, एंड देन दैट गोज़ डाउन। आपकी कहीं पे भी काउंटी खेल रही है, कुछ भी है, तो उनका एक ही मिशन है कि 50 ओवर में 400 करना है, और उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया, जो पाकिस्तान में भी पाकिस्तान वे में पीछे उन्होंने किया था कि भाई ओपनर हैं वो उनका स्ट्राइक रेट ये होगा, नंबर 3 और 4 का ये होगा, और अगर 4 जल्दी आउट हो गए तो ये नहीं कि हमने उसके बाद 200 का सोचना है, वो कहते हैं 100 करके हार जाओ या फिर 400 कर दो, तो सिंपली आगे 5वां छठा आएगा तो 150 से ऊपर ही स्ट्राइक रेट है। अब वो करते क्या हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन कमांड एक है, देन दे जस्ट फॉलो इट रिलीजियसली। ये नहीं है कि अब मैं अपनी सोच बीच में डाल लूँ कि बैट्समैन अंदर खड़ा है, 2 आउट हो गए, प्रेशर पड़ा तो वो अब अपना वो खेलना शुरू कर, नहीं,
एक टीम ने डिसाइड किया यार 400 करना तो 400 करना है, या 400 करो या 100-125 पे आउट हो जाओ, कोई मसला नहीं है। उस तरीके से टीम भी तो पिक किया ना। देखिए अब जैसे विली है, उसकी T20 की सेंचुरी है, आदिल रशीद के 10 फर्स्ट क्लास 100 हैं, ही कम्स एट 10 और 11। बिल्कुल, ये भी एक उस पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी है कि हमने ऐसी टीम बनानी है कि जो एंड तक हमारे पास बैटिंग हो और एंड तक हमारे पास ऐसे प्लेयर हो जो कि उस चीज़ को मेंटेन करे, हमें वो फ्रीडम दें जाके एक्सप्रेस करने का। तो ये सारी चीज़ें आप देखें कि उनकी जो सबसे बड़ी चीज़ है 11, कोई 11 नहीं है उनकी, कोई कंपल्शन नहीं है यही बेस्ट है यही खेलेंगे, उन्हें उनके 18 में सारे बेस्ट हैं। सॉरी टू कट यू, अनदर क्वेश्चन, मैं आई वाज डिस्कसिंग ऑफ फेयर आई थिंक विद शोएब और मोइन में भी, कि ये रेटिंग का क्या आजकल बिग डील है। नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड, इंग्लैंड 5 पे है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पे है। सो आई एम ऑल फॉर रेटिंग, ओके रेटिंग आए। जब ये रेटिंग ये नहीं कि सितंबर में सीजन शुरू हुआ है तो 2.5 हफ्ते बाद नंबर 1 हो गए तो जी ऐसे नंबर 1 हो गए। 6 महीने आप एक रहो नंबर 1, देन सेलिब्रेट आई सपोज रेटिंग। आई वंडरिंग व्हाट द फार्मूला इज। आई विल मजर से हम बात करेंगे। देखिए उसमें क्या हुआ, उसमें अगर आप देखें न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई, ऑब्वियसली दे वर द टॉप रैंक टीम्स। उनकी C टीम आई, उनकी D टीम आई, राइट। हम उनके साथ खेले, हम उनसे जीत गए, हमारे रेटिंग पॉइंट्स बढ़ गए। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ आ गई, इन टीमों से हम जीत गए। बट हमें एक्चुअल फैक्ट्स को ज़हन में रखना चाहिए। नंबर 1 हो गए जी, हम खुश हो गए, नंबर 1 हो गए। एक्चुअल फैक्ट्स को देखें कि ऑस्ट्रेलिया की C टीम आई है, वो भी एक मैच जीत गई, एक में 300 350 कर दिया उसने, और पाकिस्तान ने वो लकीली बहुत अच्छा खेल के चेस किया, एक में 319 करके एक मैच कन्विंसिंगली हम उनसे जीत सके। फिर न्यूजीलैंड की ऑलमोस्ट D टीम थी जिसमें उनका 3rd टियर के प्लेयर भी नहीं थे, IPL में चले गए सारे, उसके अगेंस्ट भी कंपेटिटिव मैचेस हुए। अभी जो उनके लड़के बाहर बैठे हैं वो भी नहीं थे उस टीम में। तो हमने इन चीज़ों को रियलाइज़ करना है, रियलाइज़ करते हुए रियलिस्टिकली सोचना है कि वेयर डू वी स्टैंड। हमारी बेस्ट 11 खेल रही है और अगली टीम की 3rd टियर के प्लेयर खेल रहे हैं, स्टिल वी आर दे आर गेटिंग सो क्लोज टू अस। उन चीज़ों को देखना, रैंकिंग डजेंट मैटर। जब आप उनकी टॉप टीम के साथ खेलेंगे तो उनको एज होगा। हम लोग डे टू डे बेसिस पे जीते हैं। अब जैसे इंग्लैंड ने एक विजन बनाया था 2015 में, तो अब उनको कुछ साल लगे वो सक्सेस लेते हुए, कंसिस्टेंटली लेते हुए। तो हमारा विजन जो है ना वो डे टू डे वाला है कि आज मैंने कैसे सरवाइव करना है। दिस इज व्हाट वी आर एज अ कंट्री, एज अ नेशन आई सपोज। बट समवन हैज टू चेंज दैट। और जिनके पास ये रिस्पांसिबिलिटी जिनको मिली है, इट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी टू चेंज दिस। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। मगर इस वक्त हम आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद विद द पिच रिपोर्ट। Well, it's a huge day because it's the first game of the Men's Cricket World Cup and we're in Ahmedabad. It's England taking on New Zealand, and for conditions, well, it's a warm one. It's my first time here and the stadium is huge. Even from a ground dimensions, it's pretty even, 70 odd metres either side, a little bit shorter behind the wicket. But as we take a closer look at the 22 yards, I want to bring in Ian Bishop because I've heard, Ian, that it's about fast bowlers here. Well, historically, in the small sample size of ODIs that we've had, 3 between India and the West Indies, I think 33 wickets have fallen to seam or fast bowling, 17 of which have been short balls. And as we look at this surface, it looks really hard. It feels really hard, I should say. There's some slight darker spots which are indicative of a little bit of moisture, but in this heat, it really should evaporate quickly. I like your point, though, about the size of the square boundary, 71 and 70 meters, so you can use a short ball to get guys hooking and pulling. And I think spin, even though it looks as though it may not turn or deviate off a surface, you know, you spinners like to use those big boundaries and those deep fielders to get some catches. So all in all, looks a good surface. All in all, looks a good surface there. What do you? I mean, you could. It looks a good pitch according to के पेस ने वहाँ विकेटें ली हुई हैं कि, और बेस्ट थिंग क्या है जो मुझे अभी इसने बताया वो कि 70 मीटर की बाउंड्री है। इट्स अ फेयर बैटल बिटवीन बैट एंड बॉल एंड विकेट लुक्स बिट ड्राई बट रॉक हार्ड, दैट्स व्हाट बिश सेड। यहाँ से जो हम गैस ही कर सकते हैं, ग्रास इज नाइसली रोल्ड इन। घास है मगर रोल किया हुआ, तो इसका मतलब है कि विकेट आई थिंक जुड़ी रहेगी, थोड़ा सा बाउंस होगा, अच्छा आएगा, थोड़ा सा कैरी करेगा, बल्ले पे भी अच्छा, बल्ले पे भी अच्छा आएगा। बिल्कुल मैं ही कहने वाला था। एक जितने भी इंडिया के अंदर ग्राउंड्स हैं जो लेटली हमने क्रिकेट देखी है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग पिचेस हैं, बल्ले पे बॉल आता है, तो
इजीली 350 प्लस तो रन होने जो भी पहले बैटिंग करेंगे। टुमटुम में तो नहीं आएगा। टुमटुम में हेलमेट कनपट्टी स्पिनर पे भी पहनना पड़ेगा। ये इंग्लैंड जैसी क्रिकेट खेलता है वो नहीं ये चीज़ को देखेंगे कि थोड़ा सा सर्वाइविंग मोड में जाएं। जैसे मिसबा भाई ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है तो इंग्लैंड को एडवांटेज हो सकता है अगर उनको थोड़ी लेटरल सी मूवमेंट मिले तो एजेस हो सकते हैं, बट इंग्लैंड वालों ने मोंडे से बैट रखे उन्हें आ जाओ। आई नो, बट यू नो यस्टरडे मिसबा मेड अ पॉइंट न्यूजीलैंड की टीम के बारे में कि न्यूजीलैंड की टीम बड़ी अनअज्यूमिंग सी टीम लगती है एवरी टाइम, लेकिन हर दफा और कहीं ना कहीं से ये सेमीफाइनल फाइनल खेल रहे होते हैं। मिसबा ने कल यही बताया था कि वो उनका कप्तान जो था विलियम्स, उसने कहा कि लकीली हमारे पास चॉइस बड़ी कम है ना, अबाउट 4 मिलियन पीपल इन द होल कंट्री, उसी में सबने निकाल लिया। सो जो हमारे 30-35 का हमारा बैच है उन्हीं को हम चांस देते रहते हैं। ऑब्वियसली उसके साथ एक्सपीरियंस, उनके स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल है। सोदी इज बॉलिंग वेल, अभी उसने 6 आउट किए आई थिंक बांग्लादेश। अभी न्यूजीलैंड पे बात करेंगे वसीम, बट जस्ट रिविजिटिंग द इंग्लिश टीम, जो उनका जी वो मोंडे पे बल्ला रख के आना है, वो टॉकिंग अबाउट दैट, वो डेविड मलान का बल्ला भी बड़ा जबरदस्त चल रहा है अभी। यू नो लेट्स टेक अ लुक एट हिज स्टैट्स एंड ही हैज बीन इन गुड निक रिसेंटली एज वेल, ही हैज बीन डूइंग रियली वेल। लुक एट दैट, ये 127 उन्होंने किए अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर ये जब ये जरा देखें आप तो न्यूजीलैंड इनकी जरा फेवरेट सी टीम लग रही है, इसकी क्या वजह है मिसबा? इज अ गुड प्लेयर, ये इज अ ग्रेट प्लेयर, इज़ अ गुड प्लेयर। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि T20 में उसने रन्स किए हैं और अब वनडे उसके लिए थोड़ा सा उसको आसान है। अब देखें कि वो पहले कोई 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेलता था, अब वो क्या है, वो भी 100 प्लस के स्ट्राइक रेट आ गया। तो सबसे अच्छी चीज़ डेविड मलान की ये है, जब वो यहाँ पे भी पाकिस्तान में आके PSL खेला, इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, इसीलिए उसको रेट करते हैं। इंडिया में ये प्रीवियसली वनडे में नंबर 3 या कभी खेलता था कभी नहीं खेलता था। उसको खिलाने का मकसद ही ये है कि उनको पता है टीमें स्टार्ट कर सकती हैं स्पिनर से, और वो ऑफ स्पिनर को एक्स्ट्रा कवर, स्वीप्स, ये शॉट हैं, स्लॉग स्वीप बहुत अच्छी खेलता है, इवन रिवर्स स्वीप भी। तो वो बड़ा सोच के राइट लेफ्ट का कम्बिनेशन है कि उन्होंने बनाया है, और कंसिस्टेंट प्लेयर है, ये सबसे बड़ी बात है। कंसिस्टेंसी इज की इन एनीथिंग बाय द वे। दो बंदे जो उन्होंने टीम में अगर आप देखें उनकी बैटिंग में, एक डेविड मिलान है और जो रूट है, जो कि हम जिसको एंकर का रोल कहते हैं, बट इनमें भी अब जो थोड़ा सा डिफरेंट खेलना शुरू हो गए, तो उनको फ्रीडम मिलती है इसकी वजह से कि वो आएँ और वो अपनी शॉटें जिस तरह टेस्ट में वो खेल रहे हैं उस तरह खेलें। तो इंग्लैंड जो उनका एंकर है वो भी 100 प्लस के स्ट्राइक रेट पे है, बाकियों को तो छोड़ दिया। एंकर भी जो है उस पे। और इसी बात पर लेते हैं एक और वक्त। Watching A Sports, 10 Sports and the AR-Wise app, our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. Don't go away. See you on the other side. And welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the AR-Wise app, and our coverage of the ICC Men's World Cup 2023 in India. Today is the beginning, the big game where we left off in 2019. We are resuming from right there. It's England versus New Zealand. England की टीम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, न्यूजीलैंड की टीम पे अब नजर डाल लेते हैं. With me in the Pavilion are the 4 legends. I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. Let's talk about this New Zealand squad, Moin. क्या चीज़ आपको स्पेशल नजर आ रही है स्क्वाड के अंदर न्यूजीलैंड के? वेल स्पेशल एक तो ये हमेशा ही स्पेशल होते हैं। मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है उसमें सेमीफाइनल या फाइनल तक गए। स्ट्रैटेजी ऐसी ही लगता है कि एग्रेसिव क्रिकेट नहीं करें, बट दे आर थिंकर्स, यू नो। और जहाँ भी विकेट्स गिरती है वहाँ पे, अभी मिसबा जो बात कर रहे थे कि वो थोड़ा सा स्टार्ट थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं और ग्रेजुअली बिल्डअप करते हैं, यू नो। तो अल्टीमेटली अपने जो उनके जहन में गोल होता है उसको अचीव ज़रूर करते हैं। इसी तरह अगर बॉलिंग को ले लें तो मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस बॉलिंग टीम है। स्पेशली मैं कहूँगा इंडिया के अंदर सोडी विल बी अ गेम चेंजर फॉर देम। जिस तरह वो खेलते रहे IPL में परफॉर्म करते हैं, यू नो। एक विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, तो मिडल में विकेट टेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी पूरे 50 ओवर्स गेम के अंदर, यू नो। सो आई बिलीव के सोडी विल बी द इनका जो वो स्पिनर है लेफ्ट आर्म सेंटर ही हैज इंप्रूव्ड हिज बैटिंग एज वेल। और वो जाता वाइड ऑफ द क्रीज और तेज बॉल करता है, वो स्लो नहीं करता। इज अ वेरी गुड बॉलर, इज अ वेरी गुड वाइड बॉल। हां, स्पेशली IPL खेल उन कंडीशंस का उसको पता है। बट अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर आप देखें वो कैसे उसने
वो जो आप एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल से बाहर से अंदर आते हैं, फिर ऐसे बाहर। एक जो खबर है न्यूजीलैंड के कैंप से वो ये है कि जो कप्तान है उनके केन विलियमसन, वो इंजर्ड है, शायद आज का मैच ना खेले, बल्कि नहीं खेल रहे गालिबन वो आज का मैच। हाउ डज दैट इम्पैक्ट द टीम? आई मीन राइट इन द वेरी फर्स्ट गेम अगेंस्ट द डिफेंडिंग चैंपियंस, द कैप्टन गोज मिसिंग। इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, लाइक आई सेड, 9 मैच हर टीम ने खेलने हैं। दे डोंट वांट टू रिस्क इट. Okay, it's a big game. It's the opening tournament, two of the top side of the world champions, और final में थे last year. But if not 100%, although 100 भी उसने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रैक्टिस मैच में, maybe कोई निगल विगल उसको हल्की सी लगी हो, so he wants to be sure कि वो 100% हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस उसने की है, 50 किया और उसके बाद वो चला गया, रिटायर्ड हो गया। तो बट वही चीज़ मैं बात करूँगा, इनके जितने भी ये बड़ा लंबा सोचते हैं, आप देखें रविंद्रा ने 97-98 किया अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके बाद मार्क चैपमैन है जो ये सारे परफॉर्म करके बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में विल यंग को हो सकता है या डेवन कॉनवॉय को किसी एक को नंबर 3 कर देंगे, वो भी रन्स करके बैठे हुए हैं, उनमें से कोई ऊपर आ जाएगा। ऑब्वियसली केन विलियमसन की रिप्लेसमेंट तो नहीं है कोई भी प्लेयर, वो ग्लू है उनकी टीम का, वो हर किस्म की क्रिकेट खेलते हैं। और प्रेशर मैचेस में फाइनल को देख लें, वो प्रेशर T20 का मैच जो हारे हैं ये फाइनल, उसमें भी उसके रन थे, तो वो तो नहीं है, बट स्टिल आई फील कि इन फॉर्म बैट्समैन है उनके पास और रिप्लेसमेंट्स हैं उनके पास। और ये एंड दे डू वेल इन ग्लोबल टूर्नामेंट्स। ये ICC के जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, 5 में से वर्ल्ड कप, T20 और वनडे के मिला के 3 में ये फाइनल्स में आए, ऑल्दो हारे हैं बेचारे, बट सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचे। दैट्स अ बिग डील। जी शोएब, सॉरी, हम लोग बात करते हैं व्हेन इट कम्स डाउन टू अ टीम गेम, राइट, तो हम कहते हैं ये फैमिली। सो न्यूजीलैंड इज द राइट एग्जांपल जब आप ये कहते हैं कि फैमिली है। तो एज केन विलियमसन जो मेन बंदे हैं, कैप्टन हैं, इफ ही इज नॉट प्लेइंग टुडे, ही इज इंजर्ड, द हेड हॉन्चो। तो इट शोज कि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट स्टिल दे द बेस्ट, दे आर द बेस्ट। और लेट्स नॉट फॉरगेट द फील्डिंग. Fielding is going to be wet. I'm going to have to interrupt, guys, because we're going to take you back to Ahmedabad, where Ravi Shastri is with the two captains and getting ready for the toss. Let's see what happens then and who goes into bat first. Go to Ahmedabad for the toss. We are at the gigantic Narendra Modi Stadium, and it's coming up to toss time, where the coin will go up for the first time in World Cup 2023. Josh Butler for the reigning champions, England. Tom Latham for New Zealand. Jalagal Srinath, the match referee, and the toss rep, all in readiness. Josh will spin the coin. Heads. Well, Tom, you won the toss. What have you decided? We're going to have a bowl. Looks a reasonably good surface, but hopefully later on, when we get a chance with the bat, hopefully it gets better. Important that you guys acclimatize quickly to the conditions, because it's really hot, humid. How's your preparation been? Yeah, it's been great. We've had guys that have been in different parts of the world. We all came together about a week ago over here, so we've had a couple of good games leading up, a couple of warm-up games. So yeah, guys are really excited to get stuck into things. The fact that you two teams played against each other just recently, will that help? Absolutely. I think any competition you play or matches you play leading up to a World Cup are vitally important, and we had a great series. Obviously, we came out on the wrong side, but it was a great preparation leading into what's going to be a great tournament. What's the latest on Kane? So unfortunately, Kane's not quite ready yet. He's progressing nicely, but hopefully for him it's a day-by-day thing. And what's your combination today? So I've got Lockie Ferguson's got a bit of a niggle, so he'll miss out, along the likes of Sodhi, Kane and Tim Southey all miss out. Have a good one, Tom. Thank you. Well, Josh, you've lost the toss. What would you have done? Yeah, we'd have looked at bowl first as well. Looks a really good wicket. We're all excited and can't wait to get going. A lot of travel in India. How's your preparation been so far? Yeah, it's been okay. We had a good series against New Zealand back in England before we got out here. Had one game in Guwahati, one washed out, but everyone seems in a really good place. You're the reigning world champion. Some may say defending world champions. Is that pressure, or it just allows you to take the game to a high level? Yeah, I think it just
it's a great place to be. We're obviously very proud of that achievement 4 years ago, but this is something new. We're not defending anything, and we're out here to attack and try and win this one. And latest on Ben. Yeah, Ben's going to miss this game. He's got a little niggle with his hip, so unavailable for selection today. But yeah, we're hopeful that he'll be fit soon. And your combination today? The guys that are missing out are Atkinson, Topley, David Willey, and Ben Stokes. Have a good one, Joss. Thank you. Well, that's the news from the centre. It's New Zealand who won the toss, and they've decided to bowl first. But there you have it. News out of Ahmedabad is that New Zealand have won the toss and elected to bowl first. That kind of surprised me because I know England really wanted to bat first. Wasim? England said they would have bowled as well. Oh, okay. So that also maybe early on there's maybe a bit of moisture in the pitch, and secondly, the dew factor will come in. Because India में जहाँ ये गुजरात में मैच हो रहा है, maybe evening में dew ज़्यादा होती है और chase would be much easier, batting would be much easier. That's why I think teams will most probably will choose to bowl first, especially if it's not a big turner. Yeah, in Ahmedabad. Now the pitch जो है, the surface looked good, Misbah. What is going to be the strategy here now that if England is batting first? Are they going to play what they play and pick up put up a really huge total? इंग्लैंड का तो बिल्कुल सिंपल है, वो तो मैंने आपको पहले कहा मिशन 400, वो तो कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम हो जाए. बट आई थिंक द कंडीशंस, अगर गेंद कुछ थोड़ा बहुत होता है तो दैट इज़ अ प्लस फॉर न्यूजीलैंड अगेंस्ट दिस इंग्लैंड साइड. इस इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को अच्छा बैटिंग पिच मिलता है जहाँ कोई असिस्टेंस नहीं है, तो फिर तो 400 पक्का है. अगर थोड़ा बहुत ऊपर से हेल्प मिलेगी, और स्पेशली न्यूजीलैंड के बॉलर भी ऐसे हैं, सीमर बोल्ट है, वो कुछ भी कर सकता है, तो ये एक चीज़ है कि ऊपर से अगर डेंट डालते हैं तो इंग्लैंड मुश्किल में हो सकती है. अदरवाइज एक दफ़ा सेट हो गया तो फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल है. Yeah, it is impossible to stop them. And with that, it's time to take a break here in the Pavilion. आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Ahmedabad, New Zealand have won the toss and elected to bowl first. More on that after the break. Welcome back from the break. You're watching the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam and this is A Sports plus 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. With me in the Pavilion, Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. और अहमदाबाद से खबर ये है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है. आपसे कुछ लम्हों बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर हम प्लेइंग 11 लेकर आएंगे और उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे. बट इंटरेस्टिंग मैच. दिस प्रॉमिसेस टू बी अ रियली गुड गेम ऑफ क्रिकेट. शोएब, what are your expectations from this ground? Wasim ने थोड़ी देर पहले point out किया कि 70 मीटर की बाउंड्री है, so you're looking at an even contest between the bat and the ball. What are your expectations? What kind of targets are you looking at? I think New Zealand has to take early wickets. और जैसे वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, आई एम श्योर उनके जो बॉलर्स हैं उनको वो हेल्प ज़रूर मिलेगा. और मुझे ये लगता है इट्स नॉट गोइंग टू बी हाई स्कोरिंग गेम. अच्छा जी, क्योंकि आई एम श्योर जो दोनों कैप्टन्स हैं उन्होंने यही कहा कि अगर जॉश बटलर भी टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करते हैं. इसका मतलब है कि पिच में कुछ है बॉलर्स के लिए. तो मुझे नहीं लगता ये हाई स्कोरिंग मैच जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है. बट इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट. ये जरा प्लेइंग 11 के ऊपर नजर डालते हैं. आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आ रही है प्लेइंग 11. दिस इज द फर्स्ट प्लेइंग 11 दैट यू कैन सी. हियर यू गो. दिस इज इंग्लैंड. बेयरस्टो, मलान, रूट. आपका टॉप ऑर्डर आ गया. We'll see them in action momentarily. Misbah, take us through this. जी, हैरी ब्रुक 4 पे आ गए, बेन स्टोक की जगह बटलर, मोइन अली, लिविंगस्टन. बैटिंग है कि लंबी, इतनी लंबी ख़त्म ही नहीं हो रही. उसके बाद उनके ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, वोक्स, कुरन, राशिद, वुड. अब राशिद की 10 फर्स्ट क्लास की सेंचुरी है. वुड अच्छी, वुड की अच्छी वाली मतलब है. 3 fast bowlers. I mean 2.5, 1 medium pacer, very experienced, very useful. And then spinners में राशिद है, अली है, and then Livingstone. So there we go. We've got New Zealand now up on your screens. Conway, Young, Ravindra, Moin. हाँ जी, नो डाउट हैं तो अच्छे प्लेयर्स और बड़े टूर्नामेंट के. इसमें 8 ऐसे प्लेयर्स हैं जो पिछले वर्ल्ड कप में भी मौजूद थे न्यूजीलैंड के स्क्वाड में. तो एक अच्छी बैलेंस साइड है. जो मिडिल ऑर्डर है ये भी लंबा लेके चलते हैं गेम को. और एक स्पिनर्स अगर हम देखें, सेडनर जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, सारे हमारे पैनलिस्ट ने बोला है कि बहुत ही
ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं एंड सो इंटरेस्टिंग जो चीज़ एक नज़र आ रही है कि लुके फर्गूसन नहीं है टीम में और सिर्फ 3 सीम ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, जबकि एंड दे आर बॉलिंग फर्स्ट, जबकि हमें कुछ जो पिच रिपोर्ट से और दिखाई गई वो ये थी कि शायद सीमर फ्रेंडली है थोड़ी सी पिच, और तीसरे सीमर जिमी नीशम है, तो मतलब एक एक्स्ट्रा उन्होंने स्पिनर डाल लिया है या स्पिन बॉलिंग बैट्समैन जो बेसिकली वो डाला है उन्होंने चैपमैन को। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वेल, इट्स टाइम फॉर द फेवरेट सेगमेंट ऑफ आवर पैनलिस्ट एंड दैट्स द एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस ब्रॉट टू यू बाय Palmolive Natural. राइट जनाब, एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस हैं और स्पीकर पे चल रही हैं सारी ज़्यादा। ठीक है, एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस का टाइम आ गया है, सो लेट्स स्टार्ट विद यू शोएब मलिक। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? न्यूजीलैंड। शोएब मलिक के लिए न्यूजीलैंड। मोइन जी इंग्लैंड। मोइन इज गोइंग विद इंग्लैंड। वसीम? I'll give 65% to India and 35% to New Zealand. इंडिया कहाँ से आ गया? England, I mean. अस्सलाम वालेकुम। अक्लमंद के लिए इशारा ही कायफा भाई। गुड मॉर्निंग। इंग्लैंड, आप बेसिकली इंग्लैंड ही कह रहे हैं ना? गलती ना छड़ना। नहीं भाई, किस तरह पाकिस्तानियों का तो काम ही है, गलती नहीं माफ करते किसी की भी। और मिसबा? बड़ा मुश्किल डिसीजन, इंग्लैंड। Okay, so we've got only Shoaib Malik going with that, and that was your expert predictions brought to you by Palmolive Natural. राइट दोस्तों, अभी खत्म नहीं हुआ चूंकि एक और भी सेगमेंट है हमारा, एंड दैट इज प्ले टू वॉच। आज का प्ले टू वॉच आउट, लेट्स राइट जनाब, प्ले टू वॉच आउट फॉर शोएब मलिक। प्ले टू वॉच आउट लास्ट में दस देना सीधा। बंदा शो तो पहले दस दे कि भी ये आएगा सेगमेंट, तो आप अपने प्लेयर पिक कर लें। एग्जाम हो रहा है पायन। हाँ जी, यही होता है। पायना आगे दिए माचिस। नहीं, पीछे से आवाज आई है। अच्छा बताइए जनाब। चले उनके हाथ में आ गई, तुसी नहीं मैंने बचाया। ठीक है, प्ले टू वॉच इंग्लैंड में तो एक ही नाम लूंगा, तो वो ट्रेंट बोल्ट, न्यूजीलैंड। ओके, ट्रेंट बोल्ट। ऑलराइट, मोइन आपके लिए? हैरी ब्रुक्स। ऑलराइट, वसीम आपके लिए? I'm thinking because they picked up England players, I got to pick up New Zealand players. Maybe I'll go for the skipper, Tom Latham. Okay. Just random. All right. Very, very random. कोई भी नाम ले ले। कोई भी नाम लेते हैं, कोई दसो ना, तुसी दसो। सर तुसी जो भी आए, तुसी सानू जोशी बनाया है। तुसी ऑर्डर लिख रहे हो ना, सादी मटन कढ़ाई ले लो। 2 टन सादी मटन कढ़ाई मिसबा उल हक के लिए। ठीक, अच्छा भाई नाम बता दे मिसबा। कोई भी चुन लो। ट्रेंट बोल्ट। Okay, so we got 2 people pointing out to Trent Bolt, both Shoaib and Misbah. And with that, that's your segment for player to watch out for. Boys, आदत डाल लें, ये हर मैच में होना ही है, आदत डाल लें। हाँ, और अभी जिस तरह हमारे मार्केटिंग वाले चल रहे हैं, अभी बहुत सारे और सेगमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग तैयार रहें कि आप लोगों के मैच नहीं दिखाना। मैच तो दिखाएंगे, वो तो हमारे मतलब असल फोकस तो होता ही मैच के ऊपर। मैच ही चलेगा भाजी। हाँ, 50-50 ओवर हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मोइन खान आज हमें बता रहे थे, थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट से इधर आ रहा हूँ। वो ये बता रहे थे कि मोइन आप नेट कर रहे थे वसीम भाई के साथ ऑस्ट्रेलिया में गालिबन कहीं पे। वसीम भाई लेके गए थे। ये आखिरी बात है, इसलिए जल्दी से 40 सेकंड के अंदर इधर किस्सा बता दें। एक छोटा सा वाकया है, वसीम भाई नेट करने हम अक्सर जाते थे जब मैच हो रहा था ड्यूरिंग, तो उस दिन शायद हम लोग मैच नहीं खेल रहे थे, तो नेट कराने मुझे ले गए। साथ हम दोनों नेट करते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ पे, तो वसीम भाई को पहले मैंने नेट वेट कराया। बॉलिंग कराई? मैंने बॉलिंग बैटिंग करते रहे। टुंड मारता था, टुंड यानी जर्क करता था। वट्टा बॉलिंग जी बिल्कुल। तो मैंने इनको काफ़ी देर कराई, फिर जब ये थक गए तो उन्होंने कहा तू कर ले पैड। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा ये मुझे बॉलिंग कराएंगे और फुल स्टार्ट से नहीं बल्कि 3-4 कदमों के स्टार्ट से आ गए। मेरी सिर्फ कमबख्ती ये थी इतनी सी कि 2 पिचें छोड़ के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों की टीम वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी। तो इन्होंने आए बड़े आराम से 2 बॉलें मुझे ड्राइव खिलाई, तो मैंने कदम निकाल के उसको पुश किया, कवर किया। तीसरी बॉल पे अभी मैं जा ही रहा था, पता नहीं किधर पड़ी, और जो दूसरी आवाज़ मेरी हेलमेट की आई और 2 दफ़ा मेरी हेलमेट पे लगी है लड़कियों के चक्कर में।
मेरा इसके ख्याल है, ऊपर अब हम आप बात ये- करेंगे ये आप पोस्ट इनसे मैच पूछें। पे. Right now it's time to take you guys back to Ahmedabad for the live action. It is England versus New Zealand. We'll see you on the other side of the game.